मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगी BCS के हमारे संस्थापक और संयोजक राहुल कराड़ जी को कि वो आएं और सबसे पहले स्वागत भाषण दें। आपकी जोरदार तालियों के बीच भारतीय छात्र संसद में Once again, behalf of Bharatiya Chhatra Samsad Foundation, the Governing Council Chairman Raghunath Mashelkar sir, Shri T.N. Seshan ji and all the other committee members, Dr. Vishwanath Karad sir, who is the Executive President for this Bharatiya Chhatra Samsad Foundation, and of course, MIT being a host, MIT group of institutions, all the trustees, staff, students, all the very respected dignitaries on the dais, and last but not the least, my dear student leaders assembled from different parts of India. I have once again want to say that I have no words to express my satisfaction. Dr. Mashelkar sir, I would like to draw attention today of Honorable Chief Minister. I got up, our program started some 1.5 hours before the valedictory program. And intentionally I said to Neelam Sharma, who is a comparer very beautifully, last 4 days she has conducted. We must give a big round of applause for Neelam Sharma. Sir, you must know certain things. We just shortly visited the School of Government Library. He came in last year. This very foundation honored Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan ji. And when I proposed in front of the committee, Dr. Mashelkar particularly was very, very keen. And me and myself, Dr. Mashelkar, Lobsang Sange, Mr. Firodia, Anuaga ji, we all, when we were having our meeting, and Dr. Mashelkar said, Rahul, in whole of India, the man who proclaimed for the first time 15 years before, 18 years before, a culture of good governance in public life is Mr. Chandrababu Naidu. The man who communicated to the whole of India that how technologically savvy the Chief Minister can be, about the smart cities, about good governance, about the ITC, the information technology communication part. And we all know, and I used to always having a lot of fascination, some of the family friends, Mr. Rangaraju ji and Arimalli Raju, so many other people are sitting here. They are the MLAs of Andhra Pradesh, and some 10, 12 years before I requested them, I want to meet Chandrababu Naidu ji. And sir, you may recollect long back I met you with my father, Dr. Vishwanath Karad, who is a founder of this very organization, MIT group of institutions. And I think, I don't know, the School of Government we established, T.N. Seshan साहब की मुझे आज याद आ रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म काफ़ी लोगों को लगता है, कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी लास्ट ईयर, कुछ नेता लोग आए बोले राहुल, डॉक्टर माशेलकर, you are not in media either, or you are not even in politics. How come you gather so many people? And I said only one thing, that this is not about showing the power or strength to the students. Yes, here is so many, last 4 days, sir, we have observed 9 Vidhan Sabha speakers, 2 union ministers, and various other, some 15, 20 MLAs, and so many other people, some other protocol from the government, but most importantly, the people from the grassroots to people who have very different angles. Here, I want to make it clear in front of all of you, you are all going to get depart in next 1 hour, sir. The kind of attentiveness my student leaders have shown last 4 days, you can't imagine. And this platform, I am very honored that last 3 years I was requesting Medha Patkar ji कि मैडम आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना आपका बहुत ज़रूरी है. सीताराम येचुरी जी को मैं विनती करा था कि सर आप 3 साल में आप यहाँ पे आए नहीं. ऐसे काफ़ी सारे लोग, पी साईनाथ जैसी व्यक्ति, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म भूषण दिया तो बोले नहीं मुझे अवार्ड नहीं चाहिए, आई एम डूइंग माई वर्क रूरल एरिया में. ऐसे काफ़ी सारे सम्माननीय लोग यहाँ पे आके गए. आज शत्रुघ्न सिन्हा जी का भी यहाँ पे आना हुआ है. मैं सर ये प्लेटफॉर्म
आप तो राजनीति में भी काम किया, रियल लाइफ के भी हीरो और सिनेमा के पर्दे के भी हीरो। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज चंद्रबाबू नायडू जी का यहाँ पे आना और इस विषय को स्ट्रेंथन करना, बिकॉज 10 साल पहले 2003, 4, 5 में हमने जब बोला कि राजनीति का प्रशिक्षण देने का संस्था शुरू करना है, लोग हमारे ऊपर हंसे थे कि राजनीति में प्रशिक्षण कैसे क्या होता है, इस देश में तो मसल पावर चलती है, इस देश में तो पैसे की ताकत चलती है। और इस विषय के ऊपर काफ़ी सारे महाराष्ट्र के दिग्गजों के साथ चर्चा हुई। मुझे खुशी है कि आज विधानसभा के स्पीकर ऑनरेबल निम्बालकर साहब, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस टुडेज सेशन, एंड विथ हिज hands we are going to confer Dr. Mashelkar sir, our chairman, very prestigious award of this Ideal Chief Minister award. We all know the protocols, what we have said. There is an inauguration program, there is a valedictory program. In inauguration we gave the lifetime award. चंद्रबाबू जी, आपको बहुत अच्छा लगेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय कि कुलदीप नैयर साहब जो 93 जिनकी उम्र है, उनको हमने अवार्ड दिया यहाँ पे। बच्चे खाली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनको ग्लैमर और बड़े बड़े लोगों में इच्छा नहीं है खाली कि भाई, उनकी जो भावना है यहाँ पे आके, हर स्टूडेंट्स ने 700 रुपया भर के यहाँ पे अपना पार्टिसिपेशन रजिस्टर किया है। मुझे एक एक बच्चे का नाम हमारे पास है कि यहाँ पे कौन है इस पेंडॉल में बैठा हुआ। इस हमारे कैंपस में हमारे खुद के 17,000 बच्चे हैं, उसमें से खाली 300, 350, 400 बच्चों ने इसमें रजिस्टर किया हुआ है। तो ये इस प्लेटफॉर्म की शक्ति है कि एक लाइक माइंडेड ग्रुप, कंप्लीट लाइक माइंडेड ग्रुप अक्रॉस द नेशन, दे पार्टिसिपेट। देयर आर सम 50% स्टूडेंट्स ऑफ कोर्स फ्रॉम महाराष्ट्र। और मैं हमेशा बोलता हूं, पहले भी बोला था कि सर द एनर्जी लेवल हियर, एवरी माइंड इज अ क्वेश्चनिंग माइंड। दिस प्लेटफॉर्म की जो एनर्जी लेवल है, पिछले 3 दिनों में आज चौथा दिन है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, मुझे आपके ऑफिस से बोला गया खाली 11 लोग बैठेंगे। मैंने उनके साथ झगड़ा किया, मुझे बोला मुझे इनको बिठाना है ऊपर। तो बोले नहीं नहीं सर, हमने देखा है, हम अलाउ करते हैं। मैं बोला ये स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है। जब आपके मुख्यमंत्री महोदय आएंगे, गुड गवर्नेंस की बात उन्होंने बहुत प्रमोट की है और वो इसका अभिनंदन करेंगे, मेरा विश्वास है। शायद भारत की संसद में या बाकी विधानसभाओं में अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, बट इस पर्टिकुलर भारतीय छात्र संसद में जो प्रोटोकॉल आप सब लोगों की वजह से जो मेंटेन होता है, मतलब जितने विधानसभा के स्पीकर आके गए, मेरे बीच में अभी शायद पहली बार झारखंड विधानसभा के स्पीकर थे पहले सेशन में, और बड़ा स्टूडियस तरीके से वो पूरी तरीके से बैठे हुए थे। काफ़ी विधानसभा स्पीकर, काफ़ी एमएलएज, और उनका जो पार्टिसिपेशन में देखता हूं तो मेरा विश्वास बढ़ता है कि इन स्टूडेंट्स की ताकत बढ़ती है इस विषय से कि भारत के राजनेता भी इस पूरे विषय को कैसे देख रहे हैं। मेरी विनती है सर, अगर आप ये पूरी तरफ ये कुछ ये चीज़ें देखें, सभी राजनेता भ्रष्ट नहीं होते, राजनीति में भी अच्छे लोग हैं। केवल अखबार पढ़ने से या ब्लॉग लिखने से काम नहीं चलेगा, प्रत्यक्ष राजनीति में ही बदलाव, उतरने से बदलाव आ सकता है। तो हम चाहते हैं कि एजुकेटेड यूथ, हाउ डू वी सेंसिटाइज एजुकेटेड यूथ फॉर द कंट्री, हाउ डू वी कम्युनिकेट कि राजनीति भी अच्छी चीज़ है। लोकतंत्र में हमें पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। हम अगर एक बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू कल बिहार के विधानसभा स्पीकर साहब ने दिया सर, वो बोले राहुल आप बोल रहे कि पढ़े लिखे लोग राजनीति में सब भ्रष्ट लोग की ऐसी छवि है, ऐसा है, बट मुझे लगता है कि राजनेताओं को चुनने वाली जनता होती है। तो बुरे लोगों को आप चुन के देते हैं, तो हमें इसके ऊपर चिंतन करना पड़ेगा, एक एक्टिव सिटीजनशिप की बात कैसे तैयार कर पाए, ताकि आप सब लोगों के माध्यम से, मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में आप हर कोई ट्रेनिंग टू ट्रेनर जैसी बात हो। मतलब आप सब लोग 4 दिन तक ये जो पिन ड्रॉप साइलेंस, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, मतलब मेरी इच्छा है कि मतलब आप यहाँ से जब जाएंगे, मैं इससे पहले भी थोड़ी देर पहले कुछ 5 मिनट बात किया, बट मैं थोड़ी देर पहले आपका जो प्रेजिंग किया, कई बार ऐसा होता है अपने घर पे मेहमान आता है तो प्रेजिंग, और राजनेताओं के बारे में तो हम प्रेज करते, बट इस प्लेटफॉर्म की एक विशेषता है, आप थोड़ा सा बारीकी से, अगर काफ़ी पत्रकार भी यहाँ बैठे हुए हैं, कि जितने डिटेलिंग में हम इसका काम करने की कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति, यहाँ पे कोई गलत व्यक्ति का कभी सम्मान नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम भारतीय अपनी संस्कृति में कई बार, हाँ आइए आइए, आप भी आइए, आपका भी सम्मान, इनका भी सम्मान, उनका भी सम्मान। तो इस तरीके का कल्चर, इस प्लेटफॉर्म की डिग्निटी, डिसेंसी, डेकोरम जो इवॉल्व हुआ है, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में खाली भारतीय छात्र संसद पूना में, ये तो एक नेशनल कन्वेंशन है, और मुझे खुशी होती है कि गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, काफ़ी जगह के ऊपर ये छात्र संसद ऑलरेडी शुरू हुई है। और हमारा ये सपना है चंद्रबाबू जी की, मैं शत्रुघ्न सिन्हा जी को भी कहूँगा, आप भी सर गवर्नमेंट में हैं, और विनती है कि पूरे भारत के जिला, डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस के ऊपर इसका हम कैसे प्रचार प्रसार कर पाए। पूरे छात्र संसद आने वाले समय में, काफ़ी लोगों ने, मौलाना कल्बे रजी रिजवी साहब ने कल बोला कि
मैं बोला, अभी मेरे मन की बात आपने बोली कि पूरे भारत के जिले और सब जगह के ऊपर युवा संसद की कल्पना, ये कोई नई कल्पना नहीं है। 1960 से पार्लियामेंट्री मिनिस्ट्री का ये एजेंडा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सभी विधानसभाओं का पार्लियामेंट ये एजेंडा है। और मैंने तो कल सुझाव दिया सर, एक छोटा सा रिजोल्यूशन हम यहाँ पे थोड़ी देर बाद लेने जाएंगे कि भारत की जितनी भी विधानसभा है, IITs है देश में, IIMs है, बट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप की हम स्थापना कर सकते हैं क्या? और मैं तो वहां आगे जाके कहूंगा कि शायद ही देश में काफी सारे मुख्यमंत्री और काफी सारे बाकी भी नेता होंगे, बट मुख्यमंत्री जितने देश में, मुझे लगता है चंद्रबाबू जी ने जो पूरे वर्ल्ड का जो एक्सपोजर लिया है, कि ये मुझे सही मायने में हमेशा लगता है, मराठी में कहावत है कि केल्याने देशाटन, आप बाहर देखते हैं तो काफ़ी सारा आपका माइंड खुलता है और काफ़ी सारी नई चीज़ें होती है। और हमेशा वो नई नई चीज़ें करने के लिए उनकी जो उत्सुकता है, हैदराबाद तो उन्होंने बना दिया, और आज अभी आंध्र प्रदेश का जो अमरावती का कैपिटल जिस तरीके से बनने के जो सपने मैंने देखे और जो लोगों के सामने अगले 30 साल का एजेंडा उन्होंने रखा है, मुझे तारीफ लगती है। मुझे मतलब झिझक नहीं है कि भाई किसी एक राजनेता को मैं प्रेस कर रहा हूँ तो मतलब कोई हमारा कोई स्वार्थ है। सर मेरा एक ही स्वार्थ है चंद्रबाबू साहब कि मतलब आप इस मंच से आप गुड गवर्नेंस का एक सिंबल रह चुके हैं। आंध्र प्रदेश में हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप की स्थापना कर सकते हैं कि हम यानी सरकार की तरफ से, प्राइवेट संस्था तो हमारी MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट है ही, बट मुझे लगता है कि देश के वास्टनेस में वी आर स्मॉल एंटिटी सर। देश के वास्टनेस में जब गवर्नमेंट की एक ताकत अलग होती है, और कराड़ सर ने इस विषय को शक्ति दी, डॉक्टर माशेलकर ने इस विषय को ताकत दी, TN सेशन साहब ने इस विषय को ताकत दी, और हमने एक छोटी सी संस्था शुरू की, बट उसका जो स्वरूप बन गया, और मुझे नहीं पता मतलब आप हमारी पूरी टीम इसमें पूरी लग सकती है, और मैं समझता हूं कि एक भव्य ऐसी संस्था भारत के इतिहास में पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए कि भाई हम इस संस्था से राजनेता बनाते हैं। खाली पॉलिटिकल साइंस का प्रोग्राम या सोशल साइंस के लॉ के प्रोग्राम देश में होंगे, बट मुझे लगता है कि राजनीति का एक MBA प्रोग्राम कि जिसमें एक डेडिकेटेड ऐसा एफर्ट हो, जिसमें बच्चों को पंचायत, कॉर्पोरेशन, विधानसभा, लोकसभा, गुड विलेजेस, बैड विलेजेस, गुड कॉन्स्टिट्यूंसीज, बैड कॉन्स्टिट्यूंसीज, ये सब दिखा के उनको राजनीति में आने के लिए हम इक्विप करें। मतलब वो बात गई, मुझे काफ़ी सारे पुराने राजनेताओं ने बोला, चंद्रबाबू साहब नहीं नहीं ये राहुल ये है, राजनीति में ऐसा पढ़ लिख के थोड़ी होता है, कुछ भी आप मजाक करते, ऐसे नहीं होता। मैं बोला सर ऐसे अभी टाइम गया, 70 साल हो गए अभी इस आज़ादी को, आने वाले समय में शायद एजुकेटेड लोगों की, हमें ड्राइवर के लिए भी लाइसेंस लगता है, तो हमें राजनीति में तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं, तो मतलब आपके विजडम के साथ साथ एजुकेशन भी ज़रूरी है। 2009-10 में मन में खलबल थी कि हम क्या करें, ऐसी अच्छी बात क्या करें, समाधान नहीं था। स्कूल ऑफ गवर्नमेंट खोला, हमें लगा कि एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, भारतीय छात्र संसद, जो कि अभी तक देश में सभी स्टूडेंट काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव्स को इकट्ठा करने वाला एक भी प्लेटफॉर्म नहीं था। और कल्पना आगे आई, और मुझे तो कुछ सपना लगता है। I was communicating in my first session that every father feels कि my child how much capacity he has, he don't know. Sometimes they underestimate. And in my case also, sir, this is my baby, the Bharatiya Chhatra Sansad. Dr. Mashelkar always pats on my back. Padma Vibhushan Mashelkar sahib ka matlab, I have tremendous respect. Some such, where do we have heroes for the country? Dr. Mashelkar sir, not to praise you, but Mr. TN Session, I have a highest respect. और आज तो मेधा पाटकर जी ने भी स्टेज डेकोरेट किया है, और मेरी ये इच्छा है कि आने वाले समय में हम इस पूरे विषय को पूरे विधानसभाओं के साथ हम कैसे पूरे भारत की विधानसभा इसको लीड लेके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप की स्थापना कर हो सकती है क्या। सिंगापुर जैसे देश में तो स्कूल एजुकेशन से शुरुआत होती है कि बच्चे उनको निकालो और उनको पॉलिटिकल लीडरशिप में देश का चरित्र और देश का गवर्नेंस आगे करना है, इसलिए उनको हम प्लानिंग करते हैं और उसमें उनको लाने की कोशिश करते हैं। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, आज काफ़ी कुछ भावनाएं मन में है। आप सब लोगों ने पिछले 3-4 दिन में जो पार्टिसिपेशन किया है, मेरा बताना काम है, बिकॉज मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हुए, शत्रुघ्न सिन्हा साहब, राजनीति में उनका भी एक अनुभव है, उनका भी एक कद है, बट मैं चंद्रबाबू नायडू साहब को मैं विनती करूँगा कि सर इस विषय को आपके माध्यम से एक अलग स्वरूप मिल सकता है। मैं HRD मंत्रालय को भी इसके बारे में लिखा है, बाकी भी संस्थानों को मैंने लिखा है कि भाई ऐसे कुछ कल्पना हम आगे ला सकते हैं क्या। हम पूरे देश के 4,500 MLAs जो है, ऑल द 4,500 MLAs वी हैव क्रिएटेड अ नेटवर्क। किसी को भी अगर इंटर्नशिप चाहिए इन स्टूडेंट्स में से, तो इनको हमने कम्युनिकेट किया है कि दे कैन गेट कनेक्टेड विद ऑल द MLAs। अराउंड 35 विधानसभा स्पीकर्स हैव कम इन लास्ट कन्वेंशन सर। सभी विधानसभा स्पीकर्स दे हैव रियली सपोर्टेड दिस एंडेवर। जब निम्बालकर साहब के साथ में बैठा था, ही इज अ वेल नोन लॉयर, ही इज अ हाईली एजुकेटेड पर्सन, ही इज फ्रॉम रॉयल फैमिली, बट दैट इज
और रॉयल फैमिली से बाहर आके लोकतंत्र में उन्होंने जिस तरीके से शिवाजी महाराज की फैमिली का उनका ताल्लुक है, कराड़ सर ने बोला थोड़ी देर पहले, और मुझे उस बात को उन्होंने भी अभिनंदन किया कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है। और आज ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे बन रहा है। आज ये कंक्लूडिंग सेशन में थोड़ी देर में हम आदर्श मुख्यमंत्री का जो पुरस्कार है चंद्रबाबू साहब को यहाँ पे देंगे। और ये जो गंगोत्री है कि राजनीति में पॉलिटिक्स का जो क्या कद है, इसकी एक गंगोत्री भारतीय छात्र संसद में समझता हूँ मैं। आप सब लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है, यूथ टू यूथ कनेक्ट की भी बात हो चुकी है, वो ऐप कैसे इस्तेमाल करना है। हमारा सपना है कि पूरा आईटी का पूरा बेस करके पूरे देश में ये भारतीय छात्र संसद का किस तरीके से प्रमोशन किया जाए ताकि काफ़ी सारे युवा इसका लाभ उठाए। और एक अच्छी बात मुझे लगती है कि काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हुए, मुझे सबका नाम लेना संभव नहीं, बट बड़ा सिंसियरली इसको एक लैबोरेटरी की तरह सर देख रहे हैं सर, भारतीय छात्र संसद की इस बात को। और लोग इसको, मैं सबको बोलता हूँ आओ भाई मेरे पास में, कैसे बनाना है मैं बताता हूँ, ये पोडियम कैसा है, बाकी कैसी चीज़ें हैं, इसका प्रोटोकॉल्स क्या है, और वो डिटेलिंग शायद मुझे गर्व होता है बोलने के लिए कि मैं वर्ल्ड के सभी मतलब आई हैव मेट बराक ओबामा, वर्ल्ड के सभी काफ़ी लोगों को मेरा मिलना हुआ है, बट मुझे बहुत खुशी है कि इस तरीके का प्रोटोकॉल कहीं पे भी इस तरीके से इवॉल्व नहीं हुआ है। चंद्रबाबू साहब, अमेरिका में 50 स्टेट्स है, आपने कभी सुना है कि छात्रों के लिए कभी 10-12 गवर्नर्स आए हैं? यहाँ पे 25-30 विधानसभा के स्पीकर, स्टूडेंट पार्लियामेंट, भारतीय छात्र संसद, विद्यार्थियों का प्लेटफॉर्म, डेमोग्राफिक डिविडेंड, आई डोंट नो। मतलब मुझे कई बार, मैं थोड़ी देर पहले जो बोला कि मतलब ये भारतीय छात्र संसद मेरा चाइल्ड है, मुझे नहीं पता था इसका पोटेंशियल इतना बढ़ेगा, बट जिस तरीके से इन सब स्टूडेंट्स ने जो पार्टिसिपेशन दिखाया, पिछले 5 कन्वेंशन के जो 35,000 जो स्टूडेंट्स हैं, उनको सिंपली बाहर कहीं पब्लिसिटी नहीं दिखेगी सर आपको, नो पब्लिसिटी, नो एजेंडा, बाहर कहीं पे भी नहीं। रजिस्ट्रेशंस कैसे होते हैं, सिनेमा का टिकट निकाल के जाना बात अलग है, बट इस विषय के लिए इतने सीरियस टॉपिक्स के ऊपर कोई एंटरटेनमेंट कंपोनेंट के बजाय बच्चे यहाँ पे इस तरीके से, तो मुझे लगता है कि भारत में कहाँ पे असहिष्णुता है, मुझे नहीं लगती। मुझे दुख होता है ऐसा अगर कोई बोलता है तो मुझे नहीं पता, मतलब कि ये सब पूरे भारत के सभी, मतलब तेलंगाना से आज करीबन 80 बच्चों ने ये किया है, आंध्र प्रदेश से करीबन 120 बच्चों ने। मुझे लगता है कितनी बड़ी बात है कि सभी बच्चे इस तरीके से, मैं जितने भी स्पीकर्स आते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ कि शिवाजी महाराज की जय बोलते तो महाराणा प्रताप की भी जय बोलो। रीजनल फीलिंग यहाँ पे हमारे सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो ब्यूटी इस प्लेटफॉर्म की इवॉल्व हो रही है। मैं फिर से हृदय से सभी लोगों का, मंच के ऊपर बैठे हुए सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। मैं आप स्टूडेंट्स को, आप जाते जाते कुछ 1-2 चीज़ें, कि आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछे, बहुत ही सुंदर सवाल पूछे, मतलब मुझे तारीफ़ लगती है कि इतना सीरियसनेस 21, 22, 23 साल में शायद मैं भी इतना मैच्योर नहीं था। जिस तरीके से सवाल पूछे सर, आप कल्पना नहीं कर सकते, एक फैंटास्टिक, एक क्वेश्चन की जो क्वालिटी थी। डॉक्टर माशेलकर सर ने मुझे आते ही बोला, राहुल कैसा रहा 3 दिन का, कैसा रहा, बिकॉज ही इज ऑलवेज एवरी डे फोन इवनिंग में, राहुल कैसा रहा। फर्स्ट डे ही केम फॉर द इनॉग्रेशन एंड दिस टाइम बोले राहुल कैसा सर, क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चंस कैसे पूछ रहे बच्चे। मैं बोला नहीं सर, वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आई विल ब्रीफ यू। तो मुझे बहुत खुशी है, आप सबका अभिनंदन, आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया। और हमने यूथ टू यूथ कनेक्ट के माध्यम से ये जो नेटवर्क है, ये खाली ये इस पेंडॉल के कई लोगों को ये भी मैं बताना चाहूँगा कि कोई 4 दिन का खाली कन्वेंशन हो के बाद ख़त्म नहीं हो जाती। वी हैव एंगेज, वी हैव मेड ग्रुप्स, वी हैव डेवलप्ड वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, और उस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम पूरे भारत में ग्रास रूट में, एनवायरनमेंट हो, पोल्यूशन हो, काफ़ी सारे एरियाज़ में स्टूडेंट्स ने ये वायदा किया है, उनको ग्रुप लीडर्स बनाए हैं, उसके माध्यम से पूरे भारत में ये स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट लीडर्स काम करेंगे, उन्होंने सब ने कमिटमेंट दिया है यहाँ। ये भी मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। मैं जाते जाते एक ही कहने वाला हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति में आए, तो इसके लिए ये प्रेरणा हम सब जगह पे दे। आप सब लोगों में नेटवर्किंग हुआ रहेगा ऐसा मैं समझता हूँ। ज़िंदगी में सही समय पे सही अपॉर्चुनिटी भी मिलना, तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की बात है। मतलब कोई अगर वड़ा पाव या कोई अच्छी इडली अगर हमें अच्छी लगी तो हम दोस्त को बोलते हैं कि अरे भाई आप भी खा लो ना, देखो ना, मन को अच्छा लगता है, वी फील गुड, इट्स अ ब्यूटीफुल मेनू। इन द सेम वे मैं सबको, काफ़ी लोगों को अपील किया था, आज फिर से अपील करता हूँ, ये चीज़ को आप बढ़ाएं, दूसरों को दीजिए, आपके दोस्तों को दीजिए, बताइए, लाइक माइंडेड सभी जितने कि अरे यहाँ पे जाओ यार, कुछ तो है यार। तो मुझे कोई, और मुझे बिल्कुल, मैं हमेशा बोलता हूँ, काफ़ी लोग मुझे बोलते कराड़ जी आप राजनीति में आने के लिए, मतलब भाई मुझे राजनीति में
राजनीति में आओ ये मैं बोलता हूँ, बट इसके लिए ये मुझे राजनीति में आने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म नहीं बना है। तो ये शंका सर काफ़ी लोगों के मन से, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ये दिस डाउट फ्रॉम वेरियस कि ये कहाँ है, ये बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ कहाँ है। यहाँ पे सर करीबन 9 कांग्रेस के लीडर्स पार्टिसिपेट करके गए, बीजेपी के 10-12 लोग पार्टिसिपेट करके गए, बाकी सीपीआई, सीपीएम, शिवसेना, सभी पार्टियों के लोग इसमें, इस पर्टिकुलर 4 दिन के कन्वेंशन में कंप्लीट न्यूट्रल प्लेटफॉर्म वी वांट टू कन्वे एवरीबॉडी। सो आप सब लोगों की सेंसिटिविटी इस विषय में, वो विजडम सबका, लास्ट टाइम भी मुझे कुछ लोगों ने बोला आप इनको क्यों बुलाते हैं, इनको तो हम अच्छा, मैं बोला किसको अच्छा, बच्चों को बनाना है, मन बनाना है कि मुझे कौन अच्छा लगता है, क्या बनाना है, हम सेंसिटाइज करते हैं। मैं सबको बताता हूं कि इस उम्र में आपका सेंसिटाइज होना बहुत ज़रूरी है, और वही देश की बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे इंग्लैंड अमेरिका के यूथ के प्रति बहुत आदर है मैम, बिकॉज मैंने देखा कि वो क्लब में जाते हैं, पब में जाते हैं, बट जब देशभक्ति की बात आती है, नेशनल स्पिरिट की बात आती है, तो बोलेंगे यस यस, वो सर वो मैं पूछता हूं कि भाई आपके ओबामा, आपकी पॉलिसीज, दे आर अवेयर, यस दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर एंड वी फील प्राउड। बट मैं कई बार कुछ लोगों को पूछता हूं कि भाई कौन है हमारे पंत प्रधान, ऐसे भी कुछ लोग हैं, कौन है हमारे चीफ मिनिस्टर, सर आई एम नॉट इन पॉलिटिक्स। अरे भाई मैं आपकी पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग आप सिटीजन तो है इस देश के। तो स्कूल एजुकेशन में शत्रुघ्न सिन्हा साहब हमें कहीं ना कहीं विचार करना पड़ेगा कि ये ऐसा एडॉकली कुछ कन्वेंशंस लेके पूरे बाकी जगह पे खाली फायदा नहीं होगा, कुछ डेज मनाते हैं हम बाकी, बट मुझे लगता है एचआरडी मंत्रालय और सब ने इसके बारे में चिंतन करना चाहिए कि हमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को बताना पड़ेगा कि आप इसमें आओ। और वो जो पार्टिसिपेशन आप सब लोगों का, ये जो लार्जेस्ट क्लासरूम है, मैं आपको यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, बट मुझे लगता है आपसे बहुत सारे लोग पूरे देश में सीख सकते हैं। मैं फिर से एक बार हृदय से आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूँ, मन से। घर पे जाइए और ज़रूर वो माता पिताओं को भी आप प्रणाम बोलिएगा मेरा, कि और पूरे डॉक्टर माशेलकर हम सब आपको विनती करते हैं कि उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ हृदय से, कि इस विषय में कई बार पेरेंट्स की भी भूमिका होती है कि भाई अरे ये क्या है, ये कुछ आईटी कंप्यूटर दूसरा करो पेट पानी का, ये क्या है, सोशल सर्विस, पब्लिक लाइफ, ये क्या विषय है राजनीति का। तो मैं सभी माता पिताओं को भी आपको मैं प्रणाम कहता हूँ कि उन्होंने आपको मोटिवेट किया, उन्होंने आपको जाने दिया, उनको भी मेरा प्रणाम कहिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। डू वेल, I'll see you next year again, and we all will be coming with a beautiful guest list. I'm so happy, so thankful to all of you. Love you. I love you, each one of you. Thank you. Thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया।